Hi, do you find my PPT visible? Yes, sir. Okay, so the previous lectures, there were two lectures, and one of the lectures were dealing with the facts about Emerson, and second lecture dealt with two poems. One was Brahma, and second was Each and All. Today we are going to deal with two one of the essays of Emerson, that is the Oversoul, and one of the poems that are there in your syllabus, that is Amatria. So when I talk about the Oversoul, and I say that it is very long essay, but as per the demand of the time, as per the requirement of the time, I'm going to deal with the concept or the facts, only the facts that are important for the exams and basic concepts of the essay. That what are the basic elements that are there in essay? Why should we read it in perspective of UPHSC? There are some important facts that you can jot down, or I'll share that PPT so you can read it. So first thing, that it was published in 1841, and this is one of the essays that was really significant when we talk about Indian philosophy of Atma and Paramatma. When you understand about the concept of Atma and Paramatma in Hindu mythology, or as we know that Emerson was one of the American scholar who were fond of Indian writing, Indian scriptures, basically Hindu uh, mythology. Like he was well read, he read Gita, Vedas, Katha Puran, and Vishnu Puran too. So he talks about the existence and nature of human soul. That is the only and that is the only concept that uh, or that is the or India is the only place where we talk about the soul. In fact, the real concept of the Paramatma and Atma is there in the concept of the oversoul. The meaning of the oversoul is Paramatma itself. If you are interested in spirituality, then you can understand that there are many yogas. People are talking about seven chakras. They say that uh, there should be one interview, though interview is not the right word for साक्षात्कार in the sense of आत्मा and परमात्मा. जब हम आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार की बात करते हैं तो उसमें इंटरव्यू ज़्यादा सही शब्द या दिस इज नॉट इक्विवेलेंट. But when we talk, when we have to say something in English, then it is the interview of Atma and Paramatma. तो ये इटर्नल सोल की बात है. जब आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से मिलते हैं, उसी के पूरे फंक्शन को डील किया गया है इस हिस्से में. द एसे हैज बीन इंस्पायर्ड बाय हेनरी मोर्स. ये आपके एग्जाम के हिसाब से काफी अच्छा जो तीसरा चौथा पॉइंट है. द एसे हैज बीन इंस्पायर्ड बाय हेनरी मोर्स Psychozoia, or the Life of Soul, that was published in 1647, and there are five sections, or I will say that there are five paragraphs, or the five sections of including uh, 30 paragraphs. There are 30 paragraphs, though it is not demarcated anywhere that there are 30 paragraphs in the Oversoul, but literally uh, there is analysis of the essay in five sections, and these essay are divided in some paragraphs like 1 to 3, 4 to 10, 11 to 15, 16 to 21, and 21 to 30. इस तरह से पांच पैराग्राफ में उस पांचों के पांचों सेक्शंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट को डील किया गया है. तो वो सारी कॉन्सेप्ट एक एक पैराग्राफ्स के हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ. पहला है इमर्सन डिफाइन. पहला जो सेक्शन है वो एक से लेकर के थ्री पैराग्राफ्स तक का है.
It talks about the concept of oversoul. It talks about, in fact, the Paramatma or the eternal soul in English. So, he has just given his all the effort to define that what is oversoul. In fact, he says that oversoul is nothing. Sometimes he shows that oversoul is energy. Sometimes he says that oversoul is oversoul is power. He says oversoul is function. He shows oversoul or the soul is the part of the body, but it is not the part of the body itself. It means it is something that we can feel. He said that oversoul is abstract, जिसको हम छू नहीं सकते. Oversoul is not an organ, body organ, but oversoul or the soul is something that decides the functioning of the body. So it is very typical, or I'll say that he just tried to define what is oversoul, but in fact आखिरी में एक बात ये भी बोलता है कि oversoul is something that we can feel, that कैन नॉट बी डिफाइंड इन वर्ड्स. ओवरसोल ऐसा है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, इसको शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता है. लैंग्वेज कैन नॉट गिव इम्प्रेशन ऑफ द ओवरसोल, इट कैन नॉट कलर इट. उसको कोई कलर नहीं दे सकता है. ये बस समझने की चीज है कि सोल क्या है या ओवरसोल क्या है. ये इमर्सन का एक छोटा सा प्रयास रहा है इसको डिफाइन करने का. और चूंकि ये विष्णु पुराण को इन्होंने पढ़ा हुआ था, गीता का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, तो उस कॉन्सेप्ट में ओवर सोल के कॉन्सेप्ट यानी परमात्मा और आत्मा के बात को कहा गया है. तो यही हमारा पहला बिगनिंग स्टेंजा है या बिगनिंग लाइन्स है, और 1 से लेकर के 3 पैराग्राफ के बीच में. दूसरा हमारा जो जाता है वो 4 से 10 पैराग्राफ है, where he defines universal spirits that can be achieved through deeds rather than words. He says that when somebody wants to feel the existence of oversoul, then he should follow the ways of morality, the deeds that is virtuous, the deeds that sees the positive vibes around. It cannot be achieved through the words itself. सेम बात है जो हमें 3 से लेकर के 10 पैराग्राफ जो हम पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा एक ही चीज हमें समझ में आता है. वंडरफुल impression or the wonderful try of immersion to define what is oversoul, what is soul, and what is the function of the oversoul. तो एक खास चीज अगर आप देखना चाहें तो इसमें समझ सकते हैं कि oversoul is in fact the moral deeds or the virtuous deeds that we are performing. It is not in the the shape of body. It is not in the shape of organ. इसको किसी organ की तरह हम समझ नहीं सकते हैं. पैरा नंबर 11 से लेकर के 15 तक का जो है it talks about addresses the relationship between the oversoul and society. That is very interesting one, that how a society is related with the oversoul. He says when we interact with someone, if we interact with another human being, then we don't understand the link, but we are related. We understand that we are talking with a human being. We can understand the action, we can understand the intent of the person during the conversation. So that is something that is not visible, that is something that is very significant, but we cannot see it. And that particular feeling or that particular aura is in fact the work of the oversoul. That you see that he defines the universal spirit that can be achieved through deeds rather than words. ये हमारे 4 से 10 में था, और 11 से लेकर के 15 तक का जो पैराग्राफ है वो सीधा सीधा हमें सोसाइटी से जोड़ दे रहा है. और सोसाइटी में व्हेन वी इंटरेक्ट विद समवन देन वी कैन फील इट. जैसे कि कभी कभी होता है कि एक ही मेंटेलिटी के लोगों से हम मिलते हैं, वी फील वेरी हैप्पी. हमारे चारों तरफ कई तरह के लोग हैं जिस हम सभी के साथ में बात नहीं करते हैं. हमारा
इंटेंट, हमारी जो केमिस्ट्री है सभी के साथ नहीं बन पाती है। वो रिलेशनशिप है, एक अंडरस्टैंडिंग है, बिना देखे पहले एक या दो बार के बाद में हम एक लोगों को समझ जाते हैं। देर इज नो रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट वाई we feel such common link with someone when we talk or interact in society. That link in fact is the connection of the soul, that is the relationship of oversoul to the society. Another hand, people are working in society according to their will, and they are working for the betterment of the society, for betterment of their family. That is also the deeds that they are performing, that are that the deeds that they are performing for betterment of the society, for their religion, for their families, for their relatives. That is also the part where oversoul exists. ये आपका पैरा नंबर 11 से लेकर के 15 के बीच में है। एंड वन द 4 पॉइंट इज पैरा नंबर 16 to 21। इसमें कोशिश की गई है कि हाउ डज ओवरसोल रिवील टू अस। ये जो ओवरसोल है वो हमारे कैसे, इसका रिविलेशन कैसा होता है। इसमें एक दो तीन लाइनें हैं जो मैं पढ़ करके आपको बताता हूँ। The oversoul is an influx of divine mind into our mind itself। ये अभी तक जितनी बातें की गई थी 15 पैराग्राफ तक का पूरा एकदम से उल्टा हो जाता है। इट इज द रिवर्स टॉक, लाइक Emerson tried to connect oversoul with the society. First, in the previous paragraphs, Emerson tried to connect oversoul with the society, with the deeds, with the betterment, with the moral feeling। लेकिन जो ये आपका 21 से 16 से लेकर के 21 तक का पैराग्राफ है, how does oversoul reveal to us, is quietly different। He talks that an oversoul or the divine mind exists in our mind itself। ये हमारे खुद के दिमाग में है। It means an individual is responsible to feel and connect with oversoul। There is no one who can take someone to realize that this particular thing is oversoul, or you can just feel oversoul through the process, through the certain process। इट इज द रिविलेशन। दिस इज जैसे कि हमने एक वर्ड सुना होगा, इपिफैनी। जब इपिफैनी होती है तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन उस समय हमें महसूस होता है कि कोई एक पर्टिकुलर फीलिंग है कि हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित कर देती है। एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है जो हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित कर देता है। उसमें बहुत लोगों की जिंदगी बदल जाती है। बहुत लोगों को, जितने भी बड़े अचीवर्स हुए हैं, उनके लाइफ में कहीं ना कहीं एपिफैनी हुई है कि वो पाते हैं अच्छा ये वाला टाइम है, इसके लिए शायद मैं परेशान था पूरी जिंदगी। तो revealing oversoul reveals itself like an epiphany to every individual separately। There is no religion which talks about a revelation of oversoul or the Paramatma in group। दुनिया का कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो ऐसा बात कर रहा हो कि एक ग्रुप के लिए आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। सारे के सारे लोग क्या बात कर रहे हैं, इट इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। जो मुक्ति है, the concept of salvation is not for group, it is for an individual। So is the concept of oversoul in para 16 and 21। 16 से लेकर के 21 तक का जो पैरा है वो पूरी तरह से आपको बताता है कि how does an individual responsible to achieve or to feel the revelation of oversoul। इसमें कुछ लाइनें हैं जैसे कि वी शुड नॉट इंक्वायर अबाउट आवर स्पिरिचुअल फ्यूचर, रादर वी शुड वर्क एंड लिव। इसमें जो एक लाइन है वर्क एंड लिव, ये आप जब 16 से 21 का पैराग्राफ अगर डिटेल स्टडी कभी करेंगे तो देखेंगे कि ये लाइन बड़ी ही प्रॉम्प्ट है, वर्क एंड लिव। यू सी समटाइम्स it is like a theology, it is like a religious scriptures, it is like dogma where we cannot question। Sometimes we should only show our trust on particular things। So is the case with the realization of oversoul।
आत्मा से परमात्मा के मिले के जैसे हिंदी में भी बोला गया है कि अविगत गत कुछ कहत न आवे। ये अविगत है, दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी अचीव थ्रू आवर मटेरियल प्रोसेस, थ्रू आवर मटेरियल अचीवमेंट्स। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही धावे। ये अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि अविगत गत कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठो फल को रस अंतर मन ही धावे। तो ये एक मीठा फल है, मीठे फल को आप महसूस कर सकते हैं, उसको शब्दों में कितना भी बताएं लेकिन उसके जो स्वाद है वो हम रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सच इज द concept of realization, or such is the process of revelation of oversoul to us, to an individual, यानी कि ये ग्रुप के लिए नहीं होता है। that is in fact the concept of paragraph number 16 to 21, and next paragraph is 22 to 30, and there is nothing but oversoul. And how can we understand the concept of this paragraph? It is in fact talking about the light and salvation. इसमें दो कॉन्सेप्ट है जो आप के एग्जाम के लिए जरूरी है, कि जिसमें दो कॉन्सेप्ट दिया गया है, लाइट एंड सेल्वेशन। लाइट एंड सेल्वेशन इज अ सिंबॉलिकल लैंग्वेज, और उसमें बोला गया है विद इन एंड विदाउट। इट मीन्स ओवर सोल or the power of the prayer, the power of the spiritual energy is within. It does not come from without, from outside. So within and without, the concept of from within and from without is the last concept that has been dealt with paragraph number 22 to 30। बहुत सारी बातें कह करके ये बात निकाली गई है कि there is always the concept of the salvation, मुक्ति का मार्ग है, but it is within, इट इज नॉट फ्रॉम विदाउट। ये बाहर से नहीं आता है, ये हमें खुद ही महसूस करना पड़ता है। मुझे पता है कि कुछ चीजें जो हमने बात की थोड़ा सा हैफजर्ड हो गया है, तो इसीलिए मैं एक एक मिनट का रिकैप लेता हूं कि व्हाट वाज द थिंग दैट एक्चुअली आई वांटेड टू कन्वे इन दिस समरी और इन दिस फैक्ट ऑफ द एसे, द ओवरसोल। पब्लिकेशन का डेट तो दैट इज वेरी कॉमन थिंग, एंड one important thing that you can notice and you can jot down is it was inspired by Henry Moore's Psychozoia or the Life of Soul। ये हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में आ जाए, ये पब्लिश भी हुआ है 1647 में। एंड देयर आर 5 सेक्शंस इन एसे, जो 5 सेक्शंस अलग अलग तरीके से ओवरसोल के वर्किंग को डिफाइन किए हैं। एंड इफ वी आर इंडियन, आई थिंक वी नीड नॉट टू फोकस, we need not to get extra knowledge for oversoul। अगर हम इंडियन है तो irrespective of the religion, irrespective of the creed, we understand कि आत्मा और परमात्मा क्या होता है। we ये हो सकता है कि हमने कहीं पढ़ा ना हो, लेकिन हमारे घर पे देख करके हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों ने बातें किए हुए हैं, तो उससे हमें समझ में आता है कि परमात्मा आत्मा का जो एक इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, वो बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। जैसे कि लाइफ के 4 पार्ट बांटे गए हैं हमारे यहाँ पे। ये हमारा 25 साल का जो टाइम है वो विद्या अर्जन के लिए है, विद्यार्थी जीवन है। जो 25 से 50 साल का है वो गृहस्थ आश्रम है, ये नॉर्मल लाइफ के लिए है। और जो इसका हमारा 50 से 75 का है वो वानप्रस्थ आश्रम है, और सॉरी वो संन्यास आश्रम है। और जो 75 से 100 का है वो वानप्रस्थ आश्रम है। ये चारों चीजें जो लास्ट में वानप्रस्थ आश्रम की बात की गई है कॉमन पीपल के लिए, वो इनफैक्ट एक जर्नी है। वो जर्नी ये है टू सर्च द ओवरसोल, परमात्मा से मुलाकात करने के लिए एक जर्नी की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो वही सारा कॉन्सेप्ट है जिसको अमेरिकन स्कॉलर एमर्सन हैज ट्राइड टू कन्वे थ्रू आउट द वर्ल्ड with his essay, because he was very famous lecturer. He was very famous who delivered a lot of lecture. Near about 1500 lectures have been delivered throughout his life. और उसके lectures, his lecture was too famous that people were mad for him. तो उसके lectures को ही बाद में essays में convert किया गया हुआ है। ये आप सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या जानते होंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात भी किया हुआ था कि near about 80 lectures were the routine of his
per year, and throughout his life he has delivered 1500 lectures. तो उस लेक्चर्स में उसने ये बात किया और पूरी दुनिया को समझाने के लिए कि किस तरह से इंडियन फिलॉसफी वर्क करती है परमात्मा और आत्मा पे। तो इसके सारे इस जैसे इसके जैसे ओवर सोल के बाद में सेल्फ रिलायंट भी एक ऐसे है, उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, उस सिलेबस में नहीं है। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को 5 सेक्शन में जो डील किया गया है, पहला पैराग्राफ आपका जो डील करता है, द फर्स्ट पैराग्राफ इज वेयर इज द स्लाइट ही हैज जस्ट ट्राइड टू डिफाइन what is soul, what is oversoul, and he found that it is something that cannot be touched, it is something that can be felt only। ये ऐसी चीज है जिसे केवल महसूस ही किया जा सकता है। सेकेंड सेक्शन में हम पैरा 4 से 10 तक देखते हैं, वो जहाँ पे कर्म को सब कुछ माना गया। जैसे हमारे हमारे यहाँ हमने सुना होगा कि कर्म ही पूजा है, हमने सुना है कि कर्म ही पूजा है, यानी कि इसी में तो सारा कुछ छुपा हुआ है। अगर इस हिस्से को आप देखें, कर्म ही पूजा है, इट मीन्स द पूजा का कॉन्सेप्ट जो हम बोलते हैं, इट इज द रियल कन्फ्रंटेशन, द रियल कन्फ्रंटेशन ऑफ परमात्मा, द पावरफुल एनर्जी। जब हम सजदे में होते हैं, जब हम प्रेयर कर रहे होते हैं, वो जो हम एनर्जी फील करते हैं, अगर कोई कार्य करने वाला अपना काम जब हम सबसे बेहतर तरीके से करते हैं तो वही एनर्जी फील करते हैं। इसीलिए 4 से लेकर के 10 का तक का जो पैराग्राफ है उसमें यही बात बोला गया है, आर मॉरल स्पिरिचुअल वर्चुअल the virtueful deeds are the region through which we can feel the आवाज आ रही है? the आवाज आ रही है क्या? हेलो, am I audible? अभिषेक सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। Yes, sir. You are audible. Do you need to? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। Yes, sir. Yes. क्या मैं रुकूं या आगे बढ़ूं? रवि सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही आपको है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आप एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, या फिर चलिए चलने दीजिए। अभी आपकी आवाज बीच में बंद हो गई थी कि 1 मिनट के लिए, जो आपने लास्ट में 3-4 मिनट में कहा है वो रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ सर। I was just giving a recap of the facts of oversoul itself in 5 that are there in 5 sections। पहला sections में बताया कि किस तरह से Emerson has tried to give an overview, give the concept of oversoul कि oversoul क्या होता है, that can be only felt, that cannot be touched, that can be felt through our deeds। ये 4 से लेकर के 10 वाले स्टेंजा में 10 वाले पैराग्राफ में बात किया गया है कि it is like spirit that can be achieved through the moral deeds, through the virtueful deeds। ये वैसी चीज है कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कर्म ही पूजा है। तो the feeling or the happiness that we feel after our all the toil, all the honest toil जो हम फील करते हैं, वही एक रीजन हो सकता है जो हमें परमात्मा से भेंट करवा सकता है, मुलाकात करवा सकता है। अगर हम 11 से 15 पैराग्राफ की बात करें तो इसको हमने डील किया है कि हाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ओवरसोल टू द सोसाइटी, सोसाइटी से ओवरसोल का कैसा रिलेशन है। तो it is talking about the organic unity of the oversoul in everyday work of individual, everyday interaction of the individual to the society। जब हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं उसमें कई तरह लोग होते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हमें हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है। तो why does it happen? Because of the works, because of the mentality, because of the similar things that we have। तो उसमें जो ऑनेस्ट चीजें हैं वो भी एक ऐसी चीज है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो काम कर रही होती हैं, दैट इज इन फैक्ट द एनर्जी दैट इज ओवरसोल। ये इसमें बताया गया है। द पैराग्राफ नंबर 16 to 21 में बात किया गया है कि हाउ डज ओवरसोल रिवील टू अस, ओवरसोल हमें रिवील कैसे करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें जैसे इसका अभी तक जो पूरा बात किया गया उसका जस्ट उल्टा बात करता है कि the electric mind that is there, the mind that oversoul
resides in our mind itself. जो इंडिविजुअल है उसके खुद के प्रयास से ही हम ओवर सोल को पा सकते हैं. वी कैन जस्ट सी ओवर सोल, वी कैन जस्ट रियलाइज ओवर सोल थ्रू आवर डीड्स, नॉट बाय द डीड्स ऑफ अदर्स. इसके लिए उन्होंने कई सारे धर्म का कई सारे जो क्रीड्स हैं उसका एग्जाम्पल भी दिया है. जैसे उन्होंने मॉर्वेनिज्म की बात की, कैल्विनिज्म की बात की, मेथोडिज्म की बात की. सभी में केवल एक ही चीज कॉमन बताया है कि एन इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल टू फील इट. कोई भी रिलीजन ऐसा है जो बात नहीं करता है कि सेल्वेशन और मुक्ति जिसे हम बोलते हैं वो किसी ग्रुप के लिए होता है. इट इज ऑलवेज द इंट्रैक्शन. हमारा जो इंडियन फिलोसफी है वो मेथोडोलॉजी, जो हमारी इंडियन मिथोलॉजी है वो भी बात करती है कि हमारा जो कन्फ्रंटेशन है, साक्षात्कार है, आत्मा से परमात्मा का मिलन है, वो ग्रुप में नहीं होता है. इट इज ऑलवेज इंडिविजुअल. सो पैरा नंबर 16 to 21 is talking especially the revelation of the oversoul through the deeds of the person. और इसमें एक खास चीज है जो कैल्विनिज्म में बात किया गया है, इलेक्ट. एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं भूल गया था, इलेक्ट, ELECT. उसका इन्होंने विरोध किया है क्योंकि इलेक्ट जो कैल्विनिज्म है वो बात करता है कि एवरी इंडिविजुअल इज इलेक्टेड टू, every individual is destined to meet or to realize over soul before his or her birth. अपने बर्थ लेने के पहले ही ये डिसाइड कर लिया गया है कि किसको ओवर सोल का एहसास होगा. एंड इट इज नॉट बाय देयर वर्क्स, इट इज नॉट बाय देयर मॉरल डीड्स दैट दे आर डूइंग. इस चीज का एमर्सन ने बहुत ज्यादा विरोध किया है. 16 से लेकर के 21 पैराग्राफ जो डिस्कस किया है, उनका ये मानना है कि ऑल द रिलीजन, all the religion in the world are talking about the individual salvation. They are not talking about the group salvation, and it is decided by the deeds, it is decided by the virtue, it is decided by the moral acts that people are performing. तो इस चीज का रेफरेंस हम पाते हैं. और एक और खास बात इसमें बोली गई है कि we cannot question about the functioning of oversoul. ओवरसोल की फंक्शनिंग कैसे होती है उस पर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. इसका रीजन दिया है कि इट इज लाइक थियोलॉजी, इट इज लाइक डॉगमा वेयर वी कैन नॉट क्वेश्चन, वी कैन ओनली फील. और उसमें बोला है जस्ट वर्क एंड लिव, वर्क एंड लिव. काम करिए और जिंदा रहिए, काम करिए और जिंदा रहिए. आगे की इसका लिटरल मीनिंग है लेकिन कनोटेशन इसका डिफरेंट है कि व्हेन यू वर्क and live, when you are honest and working, when you are honest and performing all the activities, then it is the real medium to visualize, to see oversoul, to feel oversoul. ये आपका पैराग्राफ नंबर 16 से लेकर के 21 के बीच का बात है. और when we see पैराग्राफ नंबर 22 to 30, then there is only one thing, oversoul. और इसमें बोला गया है कि how does oversoul meets individual again. इसमें दो ही कॉन्सेप्ट केवल है, within और without की बात की गई है. from within and from without. It means we can realize oversoul from within, we cannot realize it from outside. No one can help you, no one can tell you that there is oversoul and you go and just see it or grasp it. We have to visualize it by our deeds, by our own existence. ये बात की गई है लास्ट 22 से लेकर के 30 तक के पैराग्राफ में. हमने इसको काफी शॉर्ट करने की कोशिश की है क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन बात करते तो हमको लगता है 2 घंटे का लेक्चर होता. इसमें जो फैक्ट आए हैं, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट द फैक्ट. सो फ्रॉम माई एंड द essay oversoul is over. If you wish to ask any question you can ask, otherwise I can proceed for the poem. सर जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपने बताई है, वर्क एंड लिव, वो आ सकती है ना? इम्पोर्टेंट हाँ, है वो आपके पैराग्राफ नंबर 30 में लास्ट में बिल्कुल है. और वो मैं पूरी, अगर आप चाहें तो मैं पूरी लाइन पढ़ सकता हूँ. टेक्स्ट मेरे सामने रखा हुआ है. ये ऐसे है, we should not inquire about our spiritual future, rather we should work and live, work and live. ओके सर, थैंक यू.
तो ये बात क्यों लिए बोला गया है, क्यों ये चीज बताने के लिए बोला गया है कि इट इज लाइक थियोलॉजी, जैसे कि रिचुअल जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं, वी कैन नॉट क्वेश्चन ओवर दैट। जो अगर हम ट्राई करें कि अपने स्क्रिप्चर्स को चेंज करें, तो देयर इज नो चांस, देयर इज नो स्कोप, वी कैन ट्रांसलेट इट, दैट इज अनदर थिंग, but one accepted scriptures cannot be changed. So the concept of the oversoul is that uh, when you are working honestly, when you do all the deeds morally, then realization of the oversoul is definite as per the understanding of the four sects of Indian life। जैसे कि हमने बात किया कि 25 साल तक विद्यार्जन का विद्यार्थी जीवन था, तो आदमी काम ही करता था, यानी कि कर्म ही पूजा है। दूसरा है 25 से 50 साल का जो टाइम है वो गृहस्थ आश्रम बताया गया था, एंड 50 से लेकर के 75 तक का टाइम संन्यास के लिए है, और 75 से लेकर के 100 तक का वानप्रस्थ आश्रम है, जिसमें हम आदमी वन में चला जाता था। और वो जो लास्ट में जो लास्ट फेज ऑफ द लाइफ है, दैट इज इनफैक्ट द रियल जर्नी टू सर्च और टू इंटरव्यू परमात्मा और द ओवर सोल, टू मीट परमात्मा, इंटरेक्शन करने के लिए। इनफैक्ट जिसको साक्षात्कार हिंदी में बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि साक्षात्कार वर्ड जो हम इसमें आत्मा परमात्मा में जोड़ते हैं, कोई कन्फ्रंट थोड़ा सा लगता है कि इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए कि हाँ कन्फ्रंटेशन के लिए, लेकिन फिर भी साक्षात्कार इज द वर्ड दैट आई कैन फील इट विद आत्मा एंड परमात्मा। तो इतनी चीजें रही हैं, कोई और चीज अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। Either if you want to ask, then I can go ahead, I can clear it, otherwise I would like to start the poem। सर ये ऐसे है या पोएम है? ये ऐसे है, द ओवरसोल। ओके, थैंक यू। इसमें एक जो शुरुआत में बोला गया था कि हेनरी मोर के साइकोजिया और द लाइट ऑफ लाइफ से लिया गया है, इसमें आप देखिए 1 मिनट। ये जो फैक्ट है हेनरी मोर के साइकोजिया या द लाइफ ऑफ सोल से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, कहाँ से इंस्पायर किया गया है। बाकी का सारा कॉन्सेप्ट ही है जिसमें ओवरसोल को डिफाइन करने की बात की गई है। साथ में ये कोशिश किया गया है कि एक इंसान इंडिविजुअल किस तरह से ओवरसोल को फील कर सकता है। Do I need to clear it or should I start the poem? So is it a philosophical essay or religious? You see, this was in fact the lecture, a series of the lecture, and it was collected in the form of the essay. In fact, it is philosophical, or you can say it is not religious at all, because if अगर आपने इमर्सन के और एसेज पढ़े होंगे तो आप पाएंगे कि इट इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय इंडियन हिंदू मिथोलॉजी, और उसमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा के कॉन्सेप्ट को समझाने की केवल कोशिश की है। देयर इज नो रिलेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजन, ही जस्ट ट्राइड टू एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल एंड ओवर सोल। एक इनका और से अगर कभी आपको मौका लगे तो आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ रिलायंस, यू विल फील द सेम एनर्जी। जैसे जो उनका नेचर पब्लिश हुआ था, नेचर 1836 में पब्लिश हुआ था, उसके बाद में द अमेरिकन स्कॉलर जो पब्लिश हुआ था, वो भी सीरीज ऑफ लेक्चर था। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग मोर और लेस ही इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। ओके सर। आगे बढ़ें। Yes, sir.